ओके बच्चों, आज रक्षाबंधन है। आज रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और मास्क का प्रयोग करके रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इस कोरोना महामारी में सभी मुश्किल में हैं। कोई इस बीमारी से अछूता नहीं रह गया है। किसी न किसी रूप में इस बीमारी ने सबको प्रभावित किया है। तो आज बड़ा शुभ दिन है, रक्षाबंधन का दिन। तो रक्षाबंधन का मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करें। सच प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेनली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेंशन इन योर बुक यूनिट 2 solution. There is only 4 colligative property. The first colligative property is relative lowering of vapor pressure. So I am taking here relative lowering of vapor pressure this is the first colligative property. Second is elevation in boiling point. Third is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. So what is vapor pressure? Let's talk about the vapor pressure. Suppose you have one container. This is a closed container I am taking. In this container, any liquid, suppose water is present in the container. This water at room temperature form vapors. So with this circle I am representing the vapor of this liquid. This is the vapor of the water, that is pure solvent or liquid. This water vapor collide with the wall of container and with each other. There is a collision between particle and this vapor particles also collide with the wall of container and apply force, and this force per unit area is called pressure. By the colliding with the wall of container, this vapor particles apply force F. This force F per unit area is called pressure. This pressure created by the vapor of the liquid, so this pressure is called vapor pressure. If a gas apply pressure on the container wall, then it is called pressure of the gas. There is a difference between vapor and gas. Vapor are gaseous phase of substance which found either in liquid state or in solid state. Means रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड या सॉलिड के रूप में है और रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे वो वेपर में चेंज हो जा रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम वेपर कहेंगे, या गैस में चेंज हो जा रहा है तो उसे हम वेपर कहेंगे। अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में है तो उसे हम गैस कहेंगे। तो द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब 2 कंटेनर हमने लिया सिमिलर टाइप का, सिमिलर वॉल्यूम का कंटेनर हम ले रहे हैं। सिमिलर नहीं बन पड़ा है, लेकिन आप इसको मान लीजिए कि ये दोनों सेम वॉल्यूम के कंटेनर हैं।
इसमें भी वाटर रखा है। अब हमने इसमें कुछ साल्ट डिसॉल्व कर दिया, इसमें साल्ट डिसॉल्व कर दिया मीन्स ये अब प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बनने के बाद सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल तो होंगे ही, सॉल्यूट के भी पार्टिकल सरफेस पे होंगे। द सरफेस कंटेन्स सॉल्वेंट पार्टिकल एज वेल एज सॉल्यूट पार्टिकल बोथ। So this is the solvent particle at the surface. In this case there is only solvent at the surface of this liquid. If you compare the surface area of the liquid, once again I am saying the solute present in the solution is non-volatile, means can't change into the vapor form. So only solvent changes into vapor. At room temperature, less amount of vapor present in the void space of this container. What does it means? Means in a pure solvent, the surface area is larger. Surface area is larger. In the solution, surface area is less because some of the surface area occupied by the solute. Hence, larger the surface area, greater the rate of evaporation or greater the amount of evaporation. Here, lesser surface area, less amount of vapor is formed. So, the vapor pressure in the solution is less than the vapor pressure of the solvent. Suppose we represent the vapor pressure of solvent by P naught and vapor pressure of solution by P. If we talk about the solution, the pressure of the solution directly proportional to the mole fraction of the solvent. A means solvent. This is chi. This chi is a mole fraction of solvent molecule. So in solution, the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. This is solvent molecule. Why I am saying like this? Means the amount of vapor formed in a solution depend on amount of solvent. Greater the amount of solvent, greater the amount of vapor formed. Okay. So if you remove this proportionality, this P is equal to a proportionality constant, that is P naught, this chi A. In a word, how can we define this? In solution, the vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solvent, and this is known as Raoult law. That is Raoult law is based on a name of the scientist, that is this law given by the Raoult. So the vapor pressure of solution directly proportional to the mole fraction of solvent. अगर मैं आपसे कहूं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूट पे के मोल फ्रैक्शन पे क्यों नहीं डिपेंड करता है, ऑब्वियस है, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सॉल्यूट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये P और P नॉट क्या है? P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस वन, जब ये प्योर सॉल्वेंट था उस समय, यानी दिस P अप्रोचेस P नॉट, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, P अप्रोचेस P नॉट कब? जब काई ए की वैल्यू यूनिटी हो जाए, यानी केवल अगर हम सॉल्वेंट ले लेंगे तो काई ए की वैल्यू यूनिटी होगी। तो मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा अगर हम देख लें, सपोज इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट ए और दूसरा है सॉल्यूट बी।
अगर हम मोल फ्रैक्शन कहें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. दिस इज द expression for the mole fraction of a component, that is solvent. Mole fraction of B is equal to mole fraction of moles of B by moles of A plus moles of B. This represent the total moles. Total moles means mole fraction is the moles of the component by the total moles. This is the mole fraction for solute. If you add this chi A plus chi B, this equation become mole fraction mole of A by mole of A plus moles of B. Plus this moles of B, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. एलसीएम ले लीजिए, एन ए एन बी, एन ए प्लस एन बी एलसीएम हो जाएगा 1 टाइम्स दिस एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी हो जाएगा. तो काई ए प्लस काई बी दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी. यानी किसी भी सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 आता है. तो निश्चित रूप से मोल फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट लेस देन यूनिटी होगा, 1 से कम होगा. ठीक है. या यहां से एक इक्वेशन आएगा, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो लिखा जाएगा यहां पे काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी. What does it means? The mole fraction of solvent is equal to mole fraction 1 minus mole fraction of solute. यहां से ये इक्वेशन आया है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू यूनिटी. तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी. तो ये तो मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन हुआ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. कम हियर, यहां हम बात करते हैं इन सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो आप सोच के ये देखिए, क्या यहां मोल फ्रैक्शन आप सोल्यूट कर सकते हैं क्या? मेरा तो जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल नहीं है. वेपर में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा. और यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर. इस काई ए की जगह 1 माइनस काई बी आप रख सकते हैं. तो P इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस काई बी. काई इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी. पी नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट काई बी पी इज इक्वल टू. अब एक साइड में इसको करिए, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में लाइए. तो ये हो जाएगा पी नॉट काई बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी. ये जो डिफरेंस आया है पी नॉट माइनस पी, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज हायर, पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज लोअर. ओके, दिस इज द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. This is lowering, but here the word is relative lowering of vapor pressure. This is the lowering of vapor pressure, and the equation become like this: chi b is equal to P naught minus P, that is lowering of vapor pressure, divided by P naught. This is called relative lowering of vapor प्रेशर. वीपी लिखा है मैंने, वेपर प्रेशर. ये जो है इसको कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो by this equation you can easily say that
this relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. This relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, and this is another statement of Raoult law. So the relative lowering of vapor pressure equal to mole fraction of solute. Mole fraction of solute is also representing the concentration of the solution, so it's a colligative property. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक कंसंट्रेशन यूनिट है, तो यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे, कंसंट्रेशन भी नंबर ऑफ पार्टिकल को ही दर्शाता है। ये मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन यूनिट को दर्शा रहा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। एक चीज, दो स्टेटमेंट यहां पे आए, एक यहां पे और एक यहां पे। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है या इक्वेशन पूछा जाता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। वो क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट यहां से आया, दैट इज राउट लॉ। द pressure of, or vapor pressure you can say, the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. This is one statement, initial statement of the Raoult law. From here we can also write the Raoult law. From here we can write the relative lowering of vapor pressure, Vp means vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में एक फर्क है। यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, बराबर है ये। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसमें बहुत याद करने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए, अगर किसी कंटेनर में, बड़ा सा कंटेनर है, 1 लीटर अगर सॉल्वेंट अगर ले रहे हैं तो उसका प्रेशर जो है कम होगा। अगर 2 लीटर का ले रहे हैं उसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। 3 लीटर अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसका प्रेशर और ज़्यादा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम कंटेनर, आई एम नॉट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हम 1 लीटर का पहले लिए, फिर 2 लीटर का ले लिए, फिर 3 लीटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम कंटेनर। इफ यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज इन द सेम वे। वेरी सिंपल थिंग, द वेपर प्रेशर ऑफ solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. As solvent amount increases, the vapor pressure of solution increases. So the equation is relative lowering of vapor pressure. This one, relative lowering of vapor pressure. This one is equal to the mole fraction of solute. B अगर हम लिखें, हमने आपको अपने वीडियो में बताया है, अगर हम B लिख रहे हैं तो दैट इज फॉर द सॉल्वेंट। पहले सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट, आई एम सॉरी, इफ आई एम राइटिंग B दैट इज फॉर सॉल्यूट, आई एम राइटिंग A दैट इज इंडिकेशन ऑफ अ सॉल्वेंट। इफ द सोल्यूशन इज बाइनरी मीन्स 1 solute 1 solvent. If solution is binary means there is 2 component only, one solute, another one is solvent. For solvent, I represent the mass of the solvent like Ma, and mass of the solute by Mb, weight Wb that is solute weight, Wa that is solvent weight. Here chi B
I am writing here, I written here. So relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, as I told earlier. If this chi b value is, that is mole fraction of solute, is moles of solute, that is NB, by moles of solvent plus moles of solute. The moles we can write moles weight in gram of solute by molar mass of solute divided by weight of solvent in gram, that is WA, molar mass of solvent, that is MA, plus WB by MB. कहने का मतलब है ये काई बी का एक्सप्रेशन है, कहाँ से आया? बहुत सिंपल है, आपने मोल्स पढ़ा होगा 9th में. मोल्स इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, या वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ये मोल्स है, ये वेट इन ग्राम है, ये मोलर मास है. यहाँ अगर एटम की बात करेंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. यहाँ पे मोलर मास तब है जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है. या ये एक्सप्रेशन जो है काई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का एक्सप्रेशन यहाँ हम रख लेंगे. तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा P नॉट माइनस P बाई P नॉट, that is relative lowering of vapor pressure, is equal to WB by MB by WA by MA plus WB by MB. ये है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये है सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है. चूँकि सोल्यूट का अमाउंट हमेशा हम कम रखते हैं तो हम सोल्यूट वाले मोल्स को यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं. तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं. जैसे मान लीजिए इन सॉल्वेंट के मोल्स 100 लिए गए और सोल्यूट के मोल 0.1 लिए गए, तो डिनोमिनेटर में या तो 100 रख दीजिए या 100.1 रख दीजिए, दोनों लगभग बराबर है. कहने का मतलब है मोल्स जो है सोल्यूट के अगर कम है तो इस वाले को निगलेक्ट कर सकते, डिनोमिनेटर को निगलेक्ट कर सकते, मोल्स ऑफ सोल्यूट को निगलेक्ट कर सकते. तो ये इक्वेशन हो जाएगा P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू WB बाई MB बाई WA बाई MA. एक्चुअल इक्वेशन यही है, लेकिन समटाइम्स जब हम बहुत कम अमाउंट सोल्यूट के लेते हैं ये इक्वेशन ऐसा हो जाता है क्योंकि हम सोल्यूट के मोल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं. इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. जैसे सॉल्वेंट का प्रेशर दिया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, इसको घटा लेंगे, ये निकल जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग. सॉल्यूट का मोलर मास पूछा जा सकता है कि सॉल्यूट का मोलर मास, हमारा टॉपिक भी है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. तो सॉल्यूट का वेट दिया होगा, सॉल्वेंट का वेट दिया होगा, सॉल्वेंट का मोलर मास नहीं दिया होगा तो उसका फॉर्मूला दिया होगा. अगर वाटर है तो उसका 18 मोलर मास होता है, 18 ग्राम पर मोल. उसका मास दिया है सॉल्वेंट का, हम यहाँ रख लेंगे. सॉल्यूट का मास दिया है, यहाँ रख लेंगे. रिलेटिव लोअरिंग का वैल्यू दिया है या डायरेक्ट दे दिया है रिलेटिव लोअरिंग, इसमें हम रख लेंगे और MB निकाल लेंगे. तो डिटर्मिनेशन with this colligative property, by measuring this colligative property we can get the value of molar mass. ये टॉपिक था और इस टॉपिक से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं.